اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما حیر مکل العجون من عجائب قدرتہ وردعا خطرات ہماہم النفوس عن عرفان کن صفتہ الصلاة والسلام التحیت والاکرام علی رسولہ الکریم ارسلہ وعالم الہدا وارثۃ ومناہج الدین طعامثۃ فاصدع بالحق ونصح للخلق وهدى الى الرشد وامر بالقسط سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطاہرہ ہم موضع سرہ ولجاوامرہ وعیبۃ علمہ ومول حکمہ وقوف کتبہ واجبال دینہ بمقام نازہرہ وعذاب ارتعاد فرائسہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم جمیعا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے، جشن پاک کی روحانیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے تو میں حاضرین جشن کو آمد سرکار امیر کائنات امام المتقین قاتل المشرکین وسیع رسول خدا جانشین محمد مصطفیٰ وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ نفس اللہ مولا علی بادشاہ کی کعبہ میں آمد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور 13 رجب کی اس خوشی کے صدقے جتنے حاضرین موجود ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو بندہ آج کے دن کی خوشی منا رہا ہے آپ کو زمانے کے امام کے ظہور کی خوشی نصیب ہو۔ اور زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مولا کے عظیم مدح خان تشریف فرما ہے، مولا کے عظیم ذاکر پڑھ گئے، اور ایک اور بھی عظیم مدح خان ہمارے ریاست کا فخر موجود ہے، تو صرف چند لمحے کی حاضری قبلہ بات شروع کرتے ہیں کہ کتاب کا نام ہے البلاغ المبین۔ کتاب البلاغ المبین، یہ بے دلیلوں کا منبر نہیں، ہم نے دلیل والوں کو مانا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں؟ یہ تھوڑا سا ساؤنڈ والے کو کہیں ایکو کم کر دیں، ہم نے کون سا سر لگانی ہے، مہربانی ہوگی۔ کتاب کا نام ہے، بسم اللہ، کتاب کا نام ہے البلاغ المبین، جلد نمبر 2، اس میں ایک حدیث درج ہے، اس حدیث سے میں جشن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سردار نبی سے اٹھ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نبیوں کے نبی ہیں، سرداروں کے سردار ہیں، سیدوں کے سید ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یا رسول اللہ ایک بات کا جواب تو دیجئے کہ اللہ کا ہر نبی چاہے چھوٹا ہے یا بڑا اس دنیا میں آتے ہوئے معجزہ ساتھ لے کے آیا۔ جو علم سننا جانتے ہیں، جو معرفت کی باتیں سننا جانتے ہیں، وہ بندے بولیں گے میرے ساتھ، باقی کسی سے وعدہ نہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے، کہ ہر نبی اس دنیا میں معجزہ لے کر آیا۔ یا رسول اللہ، آپ تو سید الانبیاء ہیں۔ رسول کریم نے کہا کھل کے پوچھنا کیا چاہتا ہے، تاکہ ارد گرد والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ وہ سوالی کہنے لگا یا رسول اللہ، آدم کا زمین پہ آنا خلیفہ بن کے اور فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا یہ آدم نبی کا معجزہ، کشتی بنانا یہ نوح نبی کا معجزہ، آگ کو گلزار کر دینا یہ ابراہیم کا معجزہ، اور چھری سے بچ جانا یہ اسماعیل نبی کا معجزہ، لوہے کو مٹھی میں لے کے نرم کر دینا یہ داؤد نبی کا معجزہ، یوں ڈنڈے کو پھینک کے سانپ بنا دینا یہ موسیٰ نبی کا معجزہ،
फूंकों से मुर्दे को जिंदा कर देना, ये ईसा नबी का मौजज़ा। या रसूलल्लाह, हर नबी मौजज़े के साथ आया, आप तो नबियों के सरदार हैं, आपका मौजज़ा कौन सा है? नबी करीम ने मुस्कुरा के फरमाया, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जा में मुझ मोहम्मद की जान है, मेरे मौजज़े को अली कहते हैं। जिंदाबाद यार। जो बंदा बोल पड़ा है वो बंदा जश्न में खुश है, जो आले मोहम्मद की खुशी में। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। मेरे मौजज़े को अली कहते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा का मौजज़ा है अली। मौजज़ा जो होता है ना वो जिंदा रहता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। मुझे आले मोहम्मद की अजमत की कसम है, बाकी अंबिया ने भी जितने मौजज़े दिखाए, तहरीर मिलती है, तस्वीर नहीं मिलती। तवज्जो चाहूँगा, तहरीर मिलती है, तस्वीर नहीं मिलती। तहरीर कहाँ? कुरान मजीद में। फरिश्तों का सजदा करना तहरीर में मिलता है, तस्वीर में कहीं नहीं। मालिक आपको सलामत रखे। नूह का कश्ती किनारे लगाना तहरीर में मिलता है, तस्वीर में नहीं। आदम आब इब्राहिम का आग को गुलजार कर देना तहरीर मौजूद है, तस्वीर कहीं नहीं। मूसा के असे का अज़्ज़हा बन जाना तहरीर मौजूद है, तस्वीर मौजूद नहीं। ईसा नबी का परिंदे बना देना, मुर्दों को जिंदा कर देना तहरीर में मौजूद है, तस्वीर मौजूद कोई नहीं। और 13 रजब को अली की मादर खाने काबा में गई, तहरीर भी मौजूद है, जाके देख ले, तस्वीर भी मौजूद। जिंदाबाद यार। मालिक आपको सलामत रखे। जो इल्म दोस्त हैं वो बोलेंगे मेरे साथ। यार मालिक आपको सलाम, मैं राजी आपसे, मालिक आपको सलामत रखे। तहरीर भी मौजूद है, तस्वीर भी मौजूद है। नहीं यकीन आता तो जाके देख ले। लाखों करोड़ों अरबों रुपए गवर्नमेंटों ने खर्च किए, ये लकीर मिट जाए। तवज्जो है आप हजरात की या नहीं? आज भी मौजूद है। और अजीज़ान गिरामी कदर, अगर बात थोड़ी सी आपको लुत्फ़ दे रही है तो थोड़ा सा कुरान से बात हो जाए। मैंने हदीस से आगाज़ किया है। एक कुरान की बात आपको पता है, ये जिस जगह खाने काबा है, ये मक्का मुअज़्ज़मा की जो सरजमीन है, इसे कुरान मजीद में उम्मुल कुरा कहते हैं। तवज्जो है आप हज़रात की? उम्मुल कुरा क्या मतलब है इसका? उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है और पढ़े लिखे हजरात में मैं पढ़ रहा हूँ, यकीनन मुझे ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मुल कुरा, उम्मुल कुरा किसे कहते हैं? बस्तियों की माँ, करिए की माँ, ज़मीनों की माँ। अब जब उलमा से पूछा गया कि मक्का मुअज़्ज़मा को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है, तो उलमा ये लिखते हैं इसलिए कि जब अल्लाह ने ज़मीन का फर्श बिछाया तो सबसे पहली जो ज़मीन, सबसे पहला जो नुक्ता बना वो खाना काबा का मकाम था। यहीं से आके जिब्रील अमीन ने ज़मीन की तनाबों को खींचना शुरू किया। मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, ये सारी सिमतें खाना काबा वाली जगह से बनी। जब ज़मीन बन चुकी, अब उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ये लिखते हैं, जब ज़मीन बन चुकी ना तो ज़मीन को करार नहीं आ रहा था, ज़मीन को सुकून नहीं आ रहा था, ज़मीन अपने मकाम पे कायम नहीं हो रही थी। जिब्रील हाथ जोड़ के कहने लगा, पालने वाले, बन तो गई है मगर ठहरती नहीं, इसे करार नहीं आ रहा। आवाज़ कुदरत जिब्रील, इसके करार का, इसके सुकून का इंतज़ाम भी मुझ अल्लाह के पास है। जिब्रील कहता है, मालिक कौन सा? आवाज़ कुदरत, जहाँ जाके ज़मीन के ऐन वस्त में अपनी मलकूती उंगली से लिख दे या अली, क्योंकि हर बेकरार का करार अली में है। तवज्जो है आप हजरात की या नहीं? लिख दे या अली। जिब्रील ने जाके अपनी मलकूती उंगली से या अली लिखा, ज़मीन को करार आ गया, ज़मीन ठहर गई, ज़मीन को सुकून मिल गया। अब जिब्रील परेशान होके आसमान की तरफ देख रहा है। आवाज़ कुदरत है, जिब्रील तेरे उस्ताद का नाम मैंने ज़मीन पे लिखवाया है,
तुझे तो खुश होना चाहिए। कहने लगा मालिक कैसे खुश हूँ, तुझे भी इल्म है मुझे भी पता है कि इस ज़मीन पे आना है ज़मीन के खलीफा आदम ने, और यहाँ पे आदम की नस्ल चलेगी, आदम के छोटे छोटे बच्चे इस ज़मीन पे चलेंगे। आदम के किसी बच्चे ने चलते 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 अगर इस मकाम पे अपना कदम रख दिया जहाँ पे तूने मेरे उस्ताद का नाम लिखवाया है, तो क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। बंदा वो बोले जो मौला अली की आमद पे खुश बैठा है, अल्लाह की आवाज़ है जिब्रील अगर मैंने तेरे उस्ताद का नाम ज़मीन पे लिखवाया है ना, तो इसकी हिफाजत का इंतज़ाम भी मेरे पास मौजूद है। जिब्रील हाथ जोड़ के कहता है मेरे मालिक कौन सा? आवाज़ खुदा जिब्रील जहां तूने अली लिखा है यहीं पे काबा रख दे। तू बच्चों की बात करता है, अगर मैं नबियों की पेशानियां ना झुका दूं तो अल्लाह ना कहना। सलामत रहे, आबाद रहे। तो बच्चों की बात करता है, अगर यहाँ पे तवाफ करने वाले ना आए, अगर मैं इस जगह को किबला ना बना दूं तो फिर मुझे अल्लाह ना कहना। और अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये एहतमाम हुआ ही इसलिए था, हज़ारों वजहें आपने उलमा से सुनी हैं कि अली मौला ही काबा में क्यों आए। वजह यही थी कि शीयत पे आज तक इल्ज़ाम लगते हैं कि ये गाली हैं, ये नुसैरी हैं, ये मुशरिक हैं, ये अली को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह तक मानते हैं। मुझे आले मोहम्मद की अज़मत की कसम है, हम कलमाए अली वलील्लाह पढ़ते इसलिए हैं ताकि ज़माने वालों को पता चल जाए कि हम अली को अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह का वली कहते हैं। बंदा वो बोले जिसका अली वलील्लाह पे ईमान सलामत है, मालिक आपको सलामत रखे, ये हाथ सलामत रहे। हम कहते ही अली वलील्लाह इसलिए हैं कि हम अली को अल्लाह नहीं कहते। और दूसरी वजह, अल्लाह ने मौला अली बादशाह को काबा में उतार के यही तो ज़माने को बताया। ज़माने वालों याद रखो, जो आने वाला है वो अल्लाह नहीं बल्कि जो भेज रहा है वो अल्लाह है। 13 रजब को काबा के ऐन सेंटर में मेरे मुर्शद अली वली को भेज के और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों पे देकर और नबी मुस्तफ़ा की जुबान अली के मुंह में देके अल्लाह ने अली बादशाह से दुनिया में पहले दिन ही वादा कर लिया था, या अली मैंने तुझे अपना घर दिया और मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान देके तुझे लिसानुल्लाह बना के ज़मीन पे भेज इसलिए रहा हूँ कि मेरे साथ वादा कर। मेरा मालिक कौन सा वादा? आवाज़ कुदरती, तुझे लिसानुल्लाह इसलिए बनाया है कि पूरे नाचल बलागा में तू बताएगा कि जली क्या है और पूरे कुरान में मैं बताऊंगा कि अली क्या है। सलामत रहे आप, सलामत यार, मालिक आपको सलामत रखे। जो इल्म पे बोलना जानते हैं, जो इल्म सुनना जानते हैं, मालिक आपको सलामत रखे। कसीदों की महराज वाले बैठे हुए हैं, वो करवाएंगे आपको। मैं आंदा तेरी हजाती होवे किसी नूं तो चलो मौलवी ते तरस आया, नाराए हैदरी सानू घट घट ही तवज्जो है या नहीं है। अजीज़ाने गिरामी कदर, ये खैरात है, लंगर है, मौला का चलता रहेगा। अजीज़ाने गिरामी कदर, बात ये हो रही है कि 13 रजब को मौला अली आए भी इसलिए, लिसानुल्लाह भी इसलिए बनाया कि अली ने पूरी नहजुल बलागा में बताया कि अल्लाह क्या होता है। तारुफ तौहीद अली ने करवाया और तारुफ अली का अल्लाह ने कुरान में करवाया। सारा कुरान कसीदा है आले मोहम्मद का। तवज्जो है आप हज़रात की या नहीं? अच्छा, ज़माने वाले आज भी शियों पे यही इल्ज़ाम लगाते हैं, लो जी शिया कौम ही बड़ी चली जी कौम है, देखो अली को नबी से भी बढ़ा देते हैं, अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं। तवज्जो है आप हज़रात की या नहीं? अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं, नबी से भी बढ़ा देते हैं। पहले कहते हैं कि अली अल्लाह के घर में आए, भाई जहाँ नबी नहीं आए। तवज्जो है आप हज़रात की या नहीं?
वहाँ अली कैसे आ गए, जहाँ नबी नहीं आए वहाँ अली कैसे आ गए। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इसमें नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मेरे नबी की तौहीन नहीं है। अली का काबा में आना भी मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की फजीलत है, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान है। क्यों? इसलिए क्योंकि अली है जानशीन मोहम्मद, और जिसका जानशीन काबा में आए फिर वो घर क्या होगा जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा उतरा हो। वो घर तो खाने काबा से भी अफजल है। एक अहले सुन्नत भाई हज करने गए और थे अहले बैत वाले, उन्होंने आके ये वाक़या बताया। उन्होंने कहा जी वहाँ पे उन्होंने ना उर्दू मुतरजम जगह जगह पे मौलवी हजरात रखे हुए हैं। वो क्या करते हैं, जो यहाँ से सादा लोग जाते हैं जहाँ से हज करने के लिए, उन्हें घेर के ले जाते हैं, आओ इनसे मसले पूछिए, ये उर्दू जानने वाला है, ये आपको सही दीन सिखाएगा। कहने लगा कि मैं जब वहाँ गया कुछ अजीज़ रिश्तेदार वहाँ थे, तो मैंने कहा यार तुम लोग तो आते जाते रहते हो, उम्रा करते रहते हो, हज भी अदा करते रहते हो, वो जगह तो दिखाओ जहाँ पीरों का पीर, वलियों का वली, अली मौला का ज़हूर हुआ है, वो दीवार तो दिखाओ। कहने लगा वो मुझे जल्दी जल्दी पकड़ के वो कहता नहीं नहीं ये शियों की बनाई हुई बात है, मैं तुझे बताता हूँ। वो कहता है लेके मुझे एक मौलवी साहब के पास चला गया, हुलिया वही जो अक्सर होता है, ज़्यादा मैंने लंबी बात नहीं करनी, बात उनकी की हुई करने लगा हूँ। वो कहते हैं लेके गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये पाकिस्तान में होता है कि जी अली काबा में आए, ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे दिखाता हूँ हज़रत अली की आमद कहाँ पे हुई है। कहता वो मेरा हाथ पकड़ के ले गया, यूँ ऐसा ऐसा बाहर निकल के मक्का की किसी गली में ले जाके, कोई छोटा सा ऐसे मस्जिद थी जिसका दरवाज़ा था, उस दरवाजे पे ले जाके कहने लगा ये यहाँ पे अली आए थे। वो काबा वाली बात झूठ है, यहाँ पे अली आए थे। था वो अकीदे वाला, मैं कहता हूँ उस अहले सुन्नत भाई की जूतियों का मेरा सलाम है। कहने वाला जब मैंने मौलवी की सियासत देखी, मैं वहीं पे बावजूद था, उसी मस्जिद की तरफ रुख करके, उसी घर की तरफ रुख करके मैंने 2 रकात नमाज नफल की नीयत की। कहने लगा वो मेरे दाएं आए बाएं आए, कहने लगा जी किबला इधर नहीं है, किबला इधर है, किबला इधर नहीं, किबला इधर है। कहने लगा छोड़ दे मुझे मौलवी, मेरा किबला वही है जहां पे अली आया है। मालिक आपको सलामत रखे। मेरा किबला वही है, मेरा किबला वही है जहां अली आया है। कहते नहीं जी बनी आई हुई बातें हैं, भला 3 दिन के अली कैसे कलाम कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। अजीज़ान गिरामी कदर, ये बोल भी सकते हैं, ये कलाम भी कर सकते हैं। ये तो देखिए थे किसके हाथों पे। जो बंदा अब भी ना बोला तो मैं समझूंगा उसे मौला अली की आमद की खुशी नहीं है। और उस नबी के हाथों पे थे अली, जिसके हाथों पे अगर पत्थर भी आ जाए तो वो भी कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं। तवज्जो है आप हजरात की ना। अच्छा एक बात आपने सुनी होगी उलमा से, जाकिरीन से, कि मौला अली 3 दिन रहे काबा में मेहमान। 3 दिन ना मौला अली ने कुछ खाया, ना मौला अली ने आँख खोली, ना कुछ खाया ना आँख खोली। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे आए, यूँ ना कहूँ कि रहले नबूवत पे कुरान इमामत आया, तो मौला अली ने पहली आँख खोली। और रसूल पाक ने सवाल किया था, हैं या अली ये आँख 3 दिन तक क्यों ना खोली? तो अली बादशाह ने आगे से यही जवाब दिया था, या रसूलल्लाह आया तेरे लिए हूँ, अरसा हो गया नूर से नूर को जुदा हुए, मैं चाहता था इस दुनिया में आके पहली ज़ियारत आपके चेहरे की करूं। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ हाथ नीचे रह गए। पहली ज़ियारत यानी मौला अली बादशाह ने अख जिसे हम कहते हैं ना, अख खोली तो पहली ज़ियारत नबी मुस्तफ़ा के चेहरे की थी। चेहरा उसका था जो अल्लाह का महबूब तरीन नबी था। मौला अली ने पहली ज़ियारत अपनी आँख की पहली इब्तिदा जो की है वो नबी के चेहरे से की। और जब कहा ना मेरी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि इस
दुनिया में आके जो पहली चीज देखूं वो आपका चेहरा हो, फौरन ही आवाज़ कुदरती, फिर मेरा हबीब इस बात का इनाम मैं अल्लाह देता हूँ, अली ने अपनी आंख का इब्तदा तेरे चेहरे की ज़ियारत से किया है, तू भी मेरी तरफ से ऐलान कर दे, आज के बाद जो भी अली का चेहरा देखेगा वो अल्लाह की इबादत करेगा। मालिक आपको सलामत रखे। बस बात खत्म करूं और भाई को टाइम। नबी मुस्तफा के हाथों पे अली आए, रसूल पाक ने जुबान दी, अली बादशाह ने चूसना शुरू कर दिया। ऐसे ही है ना, पहले तो कुरान की तिलावत नहीं की, पहले तो नहीं बोले, रसूल पाक ने जुबान दी, अली बादशाह ने चूसना शुरू कर दिया। अब ज़माना हमसे सवाल करता है जी कैसे बोले 3 दिन के अली किस तरह बोल सकते हैं, भला 3 दिन का बच्चा भी कोई बोलने के काबिल होता है। आओ मैं समझाता हूँ, बच्चे नहीं समझेंगे, जो मेरे हम उम्र बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, आज से 10-15 साल पहले, आज तो दौर है ना जी टच मोबाइल का, कोई चीज़ बंदे ने कॉपी करनी होती है, जो उंगली लगाई टच किया, फिर उंगली लगाई टच किया, पेस्ट हो गई, एक चीज़ की 2 हो जाती हैं। आज से 15-20 साल पहले जब कैसेट का रिवाज होता था, जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो मेरे हम उम्र बैठे हैं, तब कॉपी करने का क्या तरीका होता था, एक VCP प्लेयर होता था। जवार साहब आखिरी बात है, ज़हमत है तमाम, एक VCP प्लेयर, एक VCR होता था। भाई ये कैसेट डालते VCR में, खाली कैसेट डालते VCP प्लेयर में, ये तवज्जो के साथ इस तरह की लीड होती थी, वो VCP प्लेयर से लगा के VCR में फिट कर देते थे। अब रिकॉर्डिंग का बटन दबाते थे, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब 1 की 2 होना शुरू हो जाती थी। अब सारा कमाल होता था उस लीड का, सारा डाटा ट्रांसफ़र होता था उस लीड के ज़रिए से, जो VCP प्लेयर से VCR में लगती थी। अब रिकॉर्डिंग जब मुकम्मल हो जाती, उसको रिवाइंड करके ये वाली उंगली से बटन दबा के चेक करते थे रिकॉर्डिंग दुरुस्त हुई है या नहीं हुई। हलालियों का मजमा हो, 13 रजब हो, मौला अली की आमद हो और मीसम रजा मौला की फजीलत की बात करे, आपके सरों से गुजर जाए, ये हो नहीं सकता। और यही काम तो 16 रजब को मोहम्मद मुस्तफा ने किया था, अपनी रिसालत वाली लीड को विलायत के मुंह में रख लिया। नहीं समझा सका आपको। आखिरी बंदे तक घर हवाली दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, अपनी रिसालत वाली लीड को विलायत के मुंह में रखा। अब मुझसे सवाल करो, देने वाला रसूल था तो अली ने चूसा कैसे? अगर देने वाला रसूल था ना, तो आगे लेने वाला भी अल्लाह का शेर था। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने लीड रखी, अली ने चूसना शुरू किया। इस अंदाज से चूसा कि इल्मे इलाही के सारे सॉफ्टवेयर अली के सीनाए अतहर में कापी होना शुरू हो गए। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए जुबान वापस खींची और अपनी उस उंगली से अली के होंठों को छुआ, जो अगर थोड़ा सा भी हिल जाए तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है। उंगली से होंठों को छू के कहते हैं या अली इकरा। अली फौरन बोल के कहते हैं या अली तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं। और जाहिल मौलवी तू कहता है फुला भी अली के जैसा, फुला भी अली के जैसा, फुला भी अली के जैसा। शर्म कर, रट के सूरह बकरा याद करने वाले और हैं, नज़ूल कुरान से 10 साल पहले मुस्तफ़ा को कुरान सुनाने वाला अली और है।